Mr. Hallan, my final question to you would be on the attractiveness of the Indian market, given these two transactions that have happened by Facebook as well as by Salt Lake Partners. We've seen a global slowdown that is upon us. Talks are about recession creeping back into the US, and also about the problems that the Indian economy is facing because of the COVID crisis. Given this background, how do you see these two transactions in that light? So these are remarkable transactions to be closed, amid such an environment, and that is, again reinforces Reliance's ability to execute such transactions in the most difficult of times, and it reinforces the view that Reliance Jio is not just a mobile services company. They're into the digital services segment, as they have been saying from the beginning of launch of this Jio, and they have benchmarked themselves against the global technology giants like Google, Apple, Facebook, and that is where they are headed. And this is a reinforcement of that. And to do this in an environment where you can't even travel, and to close deals this big is also quite remarkable. Now, this is not really reflective of the rest of India or the rest of the Indian corporates as such. This is particularly, very specifically focused on Reliance, and I would not extrapolate on India in general. We must not forget that the portion of the business that this relates to is the telecom business or the digital services business, which is not as impacted by the current crisis. In some ways, this current crisis has made the digital services even more important, because people are working from home, people are working remotely, and they want connectivity, they want data, they want video. So this is in a way in line with the trends that we are seeing. Mr. Hallan, it's always a pleasure having you with us. Thank you for joining us, and we do hope that you will continue to send us those wonderful reports that you do, and your views are always very welcome. Thank you for being with us, sir. चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। गौरांग जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। आपको बहुत बहुत शुभ दिन। फिलहाल एक गहराता हुआ लाल निशान, निफ्टी 6% नीचे। पिछले 4 दिन में आपने लगभग 7% की रैली देखी थी, और उसका लगभग 90% जो इजाफा था वो आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है। बचे हैं अभी 45 मिनट। बताइए क्या राय है आपकी बाजार पर? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते गुरुवार तक और गुरुवार के दिन जो हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, मेरे ख्याल से उस जरूरत से थोड़े बहुत ज्यादा थे। 2-3 चीजों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। एक तो हमें सबको पता था कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार को घोषणा सरकार के तरफ से आएगी कि शायद ये लॉकडाउन आगे और खींचा जाएगा। कितने समय तक उसका पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि 2 हफ्ते तक, यानी कि कमूमन 17 मई तक, 18 तारीख को अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो हम फिर कोशिश करेंगे कामकाज पे लौटने के लिए। तो ये जब इतना सारा कुछ था डेटा पॉइंट, मुझे लग रहा था कि शायद हम जो गुरुवार को रैली देख रहे थे वो ऊपर के तरफ की एक जो सीमा होती है वो बन चुकी है। और मेरा ये भी मानना है शैल जी के आने वाले समय की अगर मैं बात करूं मध्यम से छोटी या मध्यम अवधि के लिए, तो 2-3 लेवल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 8,800, 9,000 ये निचला एक लेवल होगा। निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं। 9,300, 9,500 ये छोटी अवधि में ऊपर का। और अगर मध्यम अवधि की ऊपर की स्तर बात करूं तो वो शायद हो सकता है जहां पर हम जा करके आए 9,800 और 10,000। ये मैं बोल रहा हूं करीबन नवंबर अक्टूबर तक शायद इसी रेंज में रहे, बशर्ते कि कोई बहुत ही बेहतरीन घोषणा सरकार के तरफ से फिस्कल स्टिमुलस को लेकर के आए, जिसकी उम्मीद हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये दायरा रहेगा, और शायद अगर आप कारोबारी हैं
तो इन दो ऊपर के स्तर के आसपास आप चाहे तो मुनाफा वसूल लें। 9,000 और 8,800 के आसपास या उसके नीचे आते हैं तो लंबी अवधि के लिए दिग्गज कंपनियों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा क्षेत्र में निवेश करें। चलिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और इस मौके का फायदा उठाएं। फिलहाल आपके सामने 600 पॉइंट का कट आपको निफ्टी में आता हुआ दिखेगा, लगभग 9,270 के आसपास। निफ्टी बैंक का हाल जरा और दयनीय होता हुआ जा रहा है। अब आपको कट दिख रहा है लगभग 8% का। यहां पर आपने लगभग 1865 का एक डिप आता हुआ देखा है और अब आपके सामने निफ्टी का लेवल है 19,668। 12 के 12 निफ्टी बैंक के शेयर्स आपको लाल निशान में आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक की वजह से आप देखिए, HDFC बैंक की वजह से सबसे ज्यादा इसमें गिरावट है, लगभग 700 पॉइंट। एक्सिस, कोटक और ICICI बैंक में भी बहुत जबरदस्त आपको गहराता हुआ लाल निशान दिख रहा है। और कहां पर आपको बिकवाली दिख रही है? फिलहाल HDFC और HDFC बैंक पर आपको